Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Now in the last lecture we started with lesson number 3, that is diversity in living things and their classification. मतलब living things के अंदर कितनी ज़्यादा variations है. We started with this and we saw कि plants जो है वो कैसे classified है, right? We studied about the diversity in plants and we saw how different varieties and species of plant they are available surrounding us. देन हमने देखा कि प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है एंड वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट उनके रोल्स के साथ. हमने पढ़ा फ्लावर्स का रोल क्या है, हाउ यू कैन डिस्क्राइब फ्लावर ऑफ द प्लांट, हाउ यू कैन डिस्क्राइब द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड उनके रोल्स क्या है. देन वी सॉ अबाउट रूट्स, leaves and fruits of the plant, right? And this is an important part of the lesson, so you should be clear with this part, okay? And it is important that you should know कि जो leaves है वो दो टाइप के होते हैं. वन इज़ सिंपल लीफ एंड दूसरा इज़ कंपाउंड लीफ. रूट्स भी दो टाइप के होते हैं, वन इज़ टैप रूट एंड द अदर वन इज़ फाइबरस रूट. ओके, सो यू शुड नो दिस पार्ट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है. देन वी सॉ वाई देर इज़ अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट. बिकॉज आप अलग अलग जगह विजिट करोगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स देखने मिलेंगे एंड दैट इज़ द रीज़न कि उनको स्टडी करना इज़ डिफ़िकल्ट. एंड हमें पता है प्लांट्स जो है उनके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो इन फ्यूचर ऐसे डिजीज़ भी आ सकते हैं जिनका हमें पता ही नहीं कि मेडिसिन बननी किससे है. एंड दैट इज़ द रीज़न हमें सारे प्लांट्स के ऊपर नॉलेज होना इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. देन we saw how the plants are classified. We saw about trees, what are shrubs, what are herbs. Then we saw what are vines, right? Then we studied about this wheat, bajra, corn, radish plant, what are the life cycles of those plants. We studied about the parts of the plant to which the butterflies and insects they are attracted. We studied about this toadstools and mushrooms, and we saw some basic knowledge about some of the largest and the smallest flower in the world, right? Then we saw what are the different habitats of the plant. Some plants will live in water, some will live on land, while some will live in desert, right? तो plants के अलग अलग habitat है and इन habitat के basis पे भी हम plants को classify कर सकते हैं in separate group. So plants को हम उनके similarities and differences के basis पे अलग अलग group में classify करते हैं, right? Now today we will be starting with diversity and classification in animals. Now diversity मतलब क्या, differences and variations, and what are the classification मतलब किस basis पे animals को classify किया गया है, कौन से similarities and कौन से difference के basis पे. ठीक है. So see, different animals they have developed different shapes to survive in the environment, है ना. सारे animals का shape जो है वो उनके environment में वो survive कर सके उस हिसाब से है, right? Then there is a great variety in the body structure of animals too, है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जिराफ का एग्ज़ाम्पल लोगे तो जिराफ जहाँ पे रहता है ना वहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े ट्रीज़ ही हैं. सो फॉर देयर सर्वाइवल अगर उनका जो नेक है वो छोटा होता तो उनको प्लांट्स, बिकॉज दे ईट प्लांट्स, राइट, तो वो प्लांट्स को खाते कैसे. एंड दैट इज़ द रीज़न उनका एनिमल का जो बॉडी है वो उस हिसाब से है, राइट. सो एवरी एनिमल दे हैव देयर शेप, body structure based on the environment they need to survive in. ठीक है. जो अब अमीबा जो होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं. ठीक है. तो ये जो हमें अपने आँखों से दिखेंगे नहीं, दे आर नॉट विजिबल टू अस विद आवर आईज. ओके. देन द ह्यूज एलिफेंट, द स्मॉल स्नेल, द फिश, then the fish that swims in water, the flies that are high in the sky, the butterflies that flit around the flowers, the house lizard that crawls on the walls, they are all animals, right? ये सारे animals हैं which we can see. हम क्या नहीं देख सकते, we cannot see amoeba, rest all we can see, right? So अलग अलग animals के उनके अलग अलग characteristics हैं and because ये उनके पास characteristic है and यही reason है कि आप उनको पहचान पाते हो. अगर एलिफेंट आपको बोला जाए आइडेंटिफाई करने के लिए, सो बिकॉज उनके पास ट्रंक रीजन होता है इसलिए आप एलिफेंट के ईयर्स बड़े होते हैं, इसलिए आप एलिफेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे. सो
एवरी एनिमल उनके पास उनका अलग कैरेक्टरिस्टिक है जिनके वजह से उनको अपनी पहचान मिली है, राइट. सो एनिमल हैव बॉडी पार्ट्स लाइक हेड, नेक, torso, tail and limb for movement, right. They also have various organ systems which are necessary for the functions inside the body. जैसे हमारे पास liver है, stomach है, pancreas है, उनके पास भी अलग अलग organs present है उनके body के अंदर to carry out various metabolic functions जो necessary है उनके body के लिए, ठीक है. So in this respect too there is a lot of diversity in animal. Diversity मतलब ये वाले रीज़न में से भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, ठीक है. सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड, टाइगर, फिश, ईगल, hen, क्रैब, हाउस फ्लाई, अर्थवॉर्म, क्रोकोडाइल एंड ग्रास हॉपर. आप कैसे इन सारे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हो? उनका स्ट्रक्चर एंड शेप देख के, उनका कलर देख के, उनके साउंड से आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो, राइट. सो दिस आर द डिफरेंसेस विच exist in each and every animal and we see a variety in animal with respect to their food as well, है ना. कुछ एनिमल्स है जो ग्रास खाएंगे. अब अगर आप टाइगर एंड लायन की बात करोगे वो तो दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, दे विल ईट द गोट, है ना. फिश को कौन खाता है? फिश को शार्क फिश खा लेगी, राइट. सो यहाँ पे हर एक एनिमल को आप उनके फूड के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हो. सिंस एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड दे आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर फूड इज़ अवेलेबल. अब ये एनिमल्स जो होता है ना वो दूसरे एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर फूड के लिए, पर कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, ओके. सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड. तो उनका फूड को लेने का तरीका भी ना, एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन दे ऑल्सो गो इन सर्च ऑफ फूड एंड दे अटैक द एनिमल्स, राइट. तो उनका फूड को लेने का तरीका इज़ ऑल्सो डिफरेंट. तो यहाँ पे आप उनको एक डिफरेंट कैटेगरी में प्लेस कर सकते हो, राइट. सो दिस टू लीड्स टू डिफरेंसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है. नाउ सी you can try this. Observe the animals in your surrounding, make a list of those names and write the basic information which you can see and then you can discuss. You should write the name of the animal which you are observing, what is the food of the animal and how they eat that food, and then you will write where do they live and the special feature that you found in that animal. You have to write this, okay. Now see, you will notice when you will write this now, you will notice you will not see all the animals in your surrounding, है ना. एलिफेंट आपके सराउंडिंग में नहीं होगा, टाइगर नहीं होगा, लायन नहीं होगा. वाई इज़ इट सो? बिकॉज वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, राइट. एंड दे लिव इन जंगल रीजन ओनली मोस्टली, बिकॉज वो हमेशा शांति में छुप के रहते हैं. एंड व्हेन दे गो इन सर्च ऑफ फूड दे विल अटैक द एनिमल, है ना. एंड वो वाइल्ड एनिमल है, वो आपको हार्म भी पहुंचाएंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वो यहाँ पे आपको आसपास नहीं मिलेंगे, ठीक है. सो विच आर द अदर एनिमल्स दैट यू नो ऑफ बट हैव नॉट सीन? ऐसे कौन से एनिमल्स है जो आपने कभी देखे नहीं है? वन माइट बी राइनो, राइट. देन सेकेंड माइट बी जेब्रा. सो दिस आर सम ऑफ द एनिमल्स विच यू माइट हैव नॉट सीन. देन टाइगर, लायन, वाइल्ड एनिमल्स को ना. So you can collect information about them using the above table, and the most important thing which you will get to know is the important feature that they have, ठीक है. So just go and search for it. Now you can try this. Take a drop of water from a puddle. Now what do you mean by a puddle? A place, suppose you can take a water from there also. अभी आप रेनी सीजन में देखोगे ना तो जो वाटर होता है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है. तो यू कैन कलेक्ट दैट ग्रीन कलर का लेयर, यू कैन प्लेस इट ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड वो ग्लास स्लाइड को आपको ये माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको, ओके. सो ये माइक्रोस्कोप के अंदर आपको रखना है. सो यू विल सी एन ऑर्गेनिज्म विच विल लुक लाइक दिस. एंड ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इट इज़ अमीबा और पैरामोशियम. नाउ सी, when a drop of water from a puddle is seen under a microscope, innumerable मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे माइक्रोब्स आपको इसके अंदर दिखेंगे. when you will see from this is called as eyepiece, ठीक है. तो आपको बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स दिखेंगे एंड यू विल सी दैट कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा. दिस इज़ दी अमीबा. ये हमेशा मूव करते रहेंगे, दे विल बी मूविंग कंटिन्यूसली. एंड दिस अमीबा दे आर यूनिसेल्युलर, ये सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, ठीक है. And the paramecium is also a unicellular animal like amoeba.
Then horse, bear, tortoise, because they are made up of many cells, they are called as multicellular animals. ठीक है. Now can you see here, this is a snail, this is kangaroo, and this is hen. Now what is the chain of bones in the center of our back called? You can see they have a back. So what it is called? It is called as vertebral column. ठीक है. See, animals with a vertebral column and those without it form two groups. तो यहाँ पे दो ग्रुप आप देख लोगे. ऐसे एनिमल्स जिनके पास एक बैकबोन होगा, मतलब वर्टिब्रल कॉलम होगा, एंड ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा. तो जिनके पास होगा वर्टिब्रल कॉलम दे विल बी कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स. जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा दे विल बी कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेट्स. ओके, तो यहाँ पे ही हमने दो ग्रुप बना ली. देन स्नेक्स, बर्ड्स, फिश एंड कंगारू, as also humans, they are vertebrate animals because we have backbone, right? Then animals such as snails, cockroaches, earthworm, they do not have this backbone, and that is why they are invertebrate animals. Okay, so these are the two groups which you have formed from this, whether they are having a backbone or not, right? Now can you name some animals which lay egg and others which give birth to their young one? अब कुछ ऐसे animals हैं who give birth to their young ones, exactly same looking young ones. For example, monkey, elephant, right? And birds का अगर आप लोगे तो they are hen, then you can say various birds, right? So see, when we have learned that producing another living thing like oneself, उसको हम reproduction process बोलते हैं, है ना. जैसे कि मंकी के केस में हो गया, देन एलिफेंट के केस में हो गया. दैट इज़ हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. अभी हैन जो है दे विल ले एग्स एंड हैचेस देम, राइट. आफ्टर फ्यू डेज क्या होता है, उस एग से एक यंग चिक आती है. एंड नेक्स्ट वन, इफ़ यू गो एंड स्टडी अबाउट काउ, देन द काउ गिव बर्थ टू अ काफ. पर उसके पहले वो काफ ग्रो करता है, राइट, काउ के बॉडी के अंदर. पर जो एग होता है दैट इज़ आउटसाइड दी हैंस बॉडी, राइट. सो दिस इज़ द डिफरेंस. एक तो एग दे रही है एंड दूसरा इज़ गिविंग बर्थ टू अ काफ. सो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप देख रहे हो, एक एग दे रहा है एंड सेकेंड वन इज़ गिविंग बर्थ टू द सेम लिविंग थिंग लाइक वन सेल्फ, है ना. सो इसमें हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं. वन इज़ ओविपोरस एनिमल, जो एग्स देते हैं एनिमल्स उनको हम बोलते हैं ओविपेरस, एंड विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, उसको हम बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स. ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो ग्रुप देख ली. वन वॉज वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, सेकेंड ग्रुप इज ओविपेरस एंड विविपेरस. ठीक है. नाउ सी, कैन यू टेल मी कि वेयर आर द एनिमल्स, नेमली हॉर्स, बेर, टॉर्टोइज, एलिगेटर, फिश, डियर एंड अ फ्रॉग टू बी फाउंड. आपको कहाँ मिलेंगे ये सारे एनिमल्स? क्योंकि इनका जो घर होता है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, एनिमल्स जो है वो किस में क्लासिफाइड है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब क्या, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं. एंड एक्वाटिक एनिमल मतलब क्या, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं. तो यहाँ पे भी आपने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, अलग तरीका बना लिया जिसके बेसिस पे आप एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हो, राइट. सो हाउएवर एनिमल्स लाइक अ फ्रॉग, salamander, toad, this all animals they will live in both the places. मतलब they can live on land means terrestrial, as well as they can live on water means aquatic. इनको हम क्या बोलते हैं, amphibious animals. ठीक है. सो लाइक frog, salamander, toad, they live on land as well as in water, and that is why they are called as amphibious animals. ठीक है. Then a kite, eagle, crow, butterfly, honeybee, they all fly in the air, right. इसलिए हम इनको बोलते हैं aerial animal because air में होते हैं ये. So though they live in different places, these animals are said to be have an aerial mode of life because they fly in the sky. That is why they are called as aerial animals. ठीक है. तो हमने यहाँ पे तीन स्टडी कर लिया, टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, एम्फीबियस एनिमल, एंड लास्ट वन वॉज एरियल एनिमल्स. ओके, सो आई होप नाउ यू माइट बी अवेयर कि हाउ यू विल क्लासीफाई एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, whether they are terrestrial,
whether they are aquatic, whether they are amphibious or aerial. ठीक है. Now always remember that in the living world, हम जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी देखने के लिए, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी. ओके, एंड एवरी प्लांट एंड एनिमल इज़ यूनिक. यूनिक मतलब क्या? डिफरेंट. एंड वी शुड ऑल मेक एन एफर्ट टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. हम सबको ध्यान देना चाहिए कि जो ये डिफरेंस है वो हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमेशा रहे. ठीक है. Now what we have learned here, that plants are classified on the basis of their height, their shape of the stem, what is the period of their life cycle and their habitat, right? We have studied this in the last lecture. Then today we studied the animals, how they are classified on the basis of their cell structure, vertebral column, method of reproduction and habitat. Right, so I hope you are clear with all the concepts which we have covered in this part, in this lesson. Okay, so thank you everyone.